Hello and Assalamu alaikum. Guys, today we are going to discuss about Section 4. Section 4 of Land Revenue Act 1967 deals with some of the very important terminologies. I mean, these terminologies are used in this act. आई थिंक दैट आप सबको पता होगा कि जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक सेक्शन ऐसी दी जाती है जिसमें हम उस एक्ट में आगे डिस्कस होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ को डिफाइन करते हैं. सो दिस इज़ द सेक्शन विच एक्चुअली डिफाइन सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन दिस एक्ट. सो लेट अस स्टार्ट. First is agricultural year. Agricultural year starts from 1st July or any other day which Board of Revenue, BOR means Board of Revenue, declares. Board of Revenue is the highest authority when it comes to Land Revenue Act. Board of Revenue कैसे बनता है, इसकी क्या powers हैं, we will discuss it later. But here you should understand one thing, that in Pakistan agricultural year from 1st July it will start, number one. Or if Board of Revenue decides that in some particular state agricultural year will not start from 1st of July, let's say agricultural year will start from 1st of August. So अगर तो कहीं पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि उस इलाके में एग्रीकल्चरल ईयर 1st of अगस्त से शुरू होगा, फिर वो 1st of अगस्त से शुरू होगा. लेकिन अगर वहाँ पे डिसाइड नहीं किया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऐसा, तो फिर एग्रीकल्चरल ईयर 1st of जुलाई से शुरू होगा. एरियर्स ऑफ लैंड, एरियर्स कहते हैं जब लैंड रेवेन्यू ड्यू हो जाए, व्हेन लैंड रेवेन्यू इज ड्यू अपॉन अ सर्टेन डेट, दैट देयर इज अ फिक्स्ड डेट बाय द गवर्नमेंट दैट अप टू दैट डेट or before such revenue has to be paid and it remains unpaid, then that unpaid revenue before the fixed date after the fixed date, will be called arrears. So it is the calculated revenue. One thing you have to understand, arrears of land are those is basically revenue which has been calculated according to law, which remains unpaid after the payable date. So let's say if the payable date was 20th July and landowner has not paid the revenue of his land until that date, that is 10th of July, it means that on 11th of July that landowner will be called defaulter. Why? Because he has not paid land revenue and he now has arrears of land. Arrears of land are against him as revenue of land is due against him. Then comes assessment circle. Assessment circle, guys, you need to understand that agricultural conditions in almost all of the districts of Pakistan, they are different. You have in somewhere you have plains, somewhere you have like maybe floody area, somewhere maybe you have very good irrigated land where artificial channels for watering are available. So in the end, the surplus or the crops that are produced in one land will always be different from other land. So assessment circle is basically group of states which are sufficiently homogeneous. Homogeneous means that their soil their soil is the same. Maybe both of those states have the same irrigation channels. हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा जो स्टेट्स जिनका जिक्र किया जा रहा है, उन दोनों स्टेट्स में सॉइल की किस्म भी एक ही है, वहाँ पे जिस तरीके से उनको पानी दिया जाता है वो भी एक ही तरह के हैं. तो जब एक लैंड जो है एक या एक से ज़्यादा जो लैंड्स हैं, जब उनके अंदर फसलें भी एक तरह की हों, वहाँ पे उन मिट्टी की किस्म भी एक ही तरह की वहाँ पे हो, उधर जो है वो वहाँ पे जो प्रोड्यूस है वो भी एक ही तरह की हो,
तो हम कहेंगे कि इस सारी लैंड को ना हम उसका एक सर्कल उसका उसका एक सर्कल डिक्लेयर हो जाता है, जो ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही करता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उन सारी स्टेट्स को या उन सारी लैंड के का एक सर्कल बना देता है, और एक ही तरह की लैंड को वो एक ही सर्कल में रखते हैं, और इस तरह से फिर वो उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से कितना सरप्लस निकलता है, यहाँ से कितनी प्रोड्यूस बनती है। दैट इज़ बेसिकली assessment circle. So in this, I mean, when you are declaring land or group of lands to be an assessment, to be in a assessment circle, you have to understand what kind of soil is there, what kind of land is there, what kind of crops are cultivated there, and what are the modes of irrigation. I mean, all of these things have to be homogeneous. They have to be equal. Otherwise, those lands will not be considered in one part of assessment circle. Assessment means you are assessing profits that landowners are taking from cultivation. Boundary mark is simple. It's any kind of natural or artificial mark to recognize the boundary of any land. Boundary mark is necessary to locate the land actually. Encumbrance is a charge or claim on a land. It can be financial or non-financial. For example, if somebody has like 200 acres of land, but from 200 of acres he has mortgaged 100 of acres to a bank for taking against some loan. So that loan by mortgage is a kind of encumbrance, and that encumbrance where money is involved, that is financial encumbrance. Non-financial encumbrance means that if somebody, if for example, if there is a person A who has like 10 marlas of land, or you can say हम ये कह लें कि जी एक शख्स है, उसकी 10 मरला लैंड है, और उस 10 मरला लैंड में से 5 मरला लैंड जो है उस पर कोई और जो है उसका आप ये समझ लें कि उसकी फैमिली का कोई बंदा कहता है जी कि इसमें से 5 मरला तो मेरा है, तो और वो उसके ऊपर स्टे ले ले कोर्ट से जाके, तो आप ये कहें कि भाई अब ये जो लैंड है ये फ्री तो नहीं है, इस पर इनकम्बरेंस है। अब ये इनकम्बरेंस जो है कि नॉन फाइनेंशियल इनकम्बरेंस है। फाइनेंशियल इनकम्बरेंस वो होती है जब कोई लैंड आप किसी को देते हैं, उसके बदले में आप कोई ना कोई पैसे लेते हैं, कोई कर्जा लेते हैं, तो उसको आप फाइनेंशियल इनकम्बरेंस कहेंगे। इनकम्बरेंस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ हर्डल in sale of the land. Every land which is under some encumbrance cannot be sold freely, or if it is sold, then the buyer should know about the kind of hurdle, kind of encumbrance there. Estate is an area for which a separate record of right is maintained, or it is separately assessed to land revenue or declared so by board of revenue. याद रख ले, स्टेट वो होती है जिसका या अलग से रिकॉर्ड ऑफ राइट बनता है, या उसकी अलग से उस पर असेसमेंट होती है कि उसमें से कितनी क्रॉप्स जनरेट होती हैं, वहाँ से कितना जो है वो मालिया, जिसको मालिया कहते हैं हम, वहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उस लैंड को कहा हो कि भाई ये एक अलग से एक स्टेट है. State is translated as Mahal and village as Moza. Moza is very common word that we use. But Moza and Mahal, these both terms are very common in our local language also. But these terms are we use in interchangeable way. लेकिन ये भी हो सकता है कि एक विलेज में कई स्टेट्स हों और एक स्टेट में कई विलेजेस हों, तो उसमें फिर हमारे पास दो टर्म्स आती हैं. एक टर्म है दाखिली और एक है खारजी. दाखिली ज़मीन वो होती है कि जब कोई एक स्टेट की ज़मीन जो है वो किसी एक विलेज में मौजूद है, लेकिन उसका होता है कई दफ़ा कहते हैं ना कि एक मौज़ा ऐसा है जी कि ये मौज़ा इस गांव में भी है तो दूसरे गांव में भी है. तो जब एक मौज़े की जो ज़मीन है वो एक गांव के में हो और दूसरे गांव में भी चली जाए, लेकिन ज़्यादा वो एक गांव में, तो जब वो दूसरे गांव में होती तो आप ये कहेंगे कि भाई ये उसके लिए दाखिली है, और जहाँ पे वो ज़मीन नहीं है उसके लिए खारजी है. तो बहरहाल ये इन दो टर्मिनोलॉजीज़ में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, दाखिली और खारजी में. आई जस्ट वांटेड टू पुट इट देयर.
दाखिली मीन्स कि जब एक मौजे की जो ज़मीन है वो एक गांव से निकल के किसी दूसरे गांव में भी आती हो, तो जिस गांव में वो आती है उसको दाखिली कहेंगे और जहाँ से वो निकलती है उसको खारजी कहेंगे। बस इतना आपके लिए काफ़ी है समझना। होल्डिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होल्डिंग इज द पोर्शन ऑफ एन स्टेट, अगेन दिस इज सब सेक्शन 10, portion of a state held by one landowner or jointly by two or more landowners. Whenever one landowner or two or more landowners are holding a portion of an estate, that is called holding. For owners, the term is used khewat or khata, and for cultivator or who is has the occupation of that land, the term is used khatuni. Khatuni number and khata number or khewat number. Khewat number is used for ownerships. Khatuni number is used for the cultivators or who has the possession of the land. याद रख ले, खाता या खतूनी का मतलब है जो ऑनर्स को ज़ाहिर करता है, या सेट ऑफ ऑनर्स को ज़ाहिर करता है, और खतूनी जो है वो जो पोजेसर्स हैं जिनके पास एक्चुअल पोजेशन ऑफ द लैंड है वो उनको ज़ाहिर करता है। हो सकता है जो मालिक है उसी के पास पोजेशन होगी, तो फिर वो खेवट भी वही मालिक है और खतूनी भी वही मालिक है। तो अ पर्सन हु इज सिंगल और इन वेरियस खसरा नंबर्स इन एन स्टेट विल बी गिवन वन खेवट नंबर। खसरा नंबर बेसिकली प्लॉट नंबर होता है, इसको हम आगे भी देख लेंगे। आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर एक स्टेट में कोई एक शख्स ए है और उसकी मुख्तलिफ जगहों पे ज़मीनें हैं, तो मुख्तलिफ जगहों पे जितनी उसकी ज़मीनें होंगी तो उन सारी ज़मीनों को अगर सम अप करेंगे तो उसको सम अप करने के बाद उसको नंबर जो है ना, खेवट नंबर, वो एक ही दिया जाएगा अगर वो उनमें सिंगल ऑनर है, किसी के साथ वो मुश्तरका ऑनर नहीं है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। लैंडलॉर्ड इज द ऑनर ऑफ अ लैंड और हैज अ रेंटल प्रॉपर्टी हु हैज लीज्ड इट टू अनदर पर्सन और टेनेंट। It is inheritable right. Landholder or one paying land revenue is not a landlord. Landlord is the one landlord is the owner of the land. याद रख लें, it may be that he is the owner, or it may happen that he himself has a land under a tenancy agreement and he has sublet the land. ये भी तो हो सकता है ना कि एक बंदे ने एक लैंड जो है वो खुद रेंट पे ली और वो आगे उसको सब लेट करे और अगले बंदे को वो रेंट पे दे, तो उस अगले बंदे के लिए तो यही शख्स लैंडलॉर्ड है ना। तो ये याद रखिएगा आप। लैंडलॉर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर ऑफ द लैंड एज फॉर्मर टर्म्स डिनोट पर्सन और पर्सन हुज इंटरेस्ट इन लैंड और ऑफ लिमिटेड और एफेमेरल करेक्टर। एफेमेरल करेक्टर वो करेक्टर होता है कि जो शॉर्ट पीरियड के लिए लिमिटेड करेक्टर होता है। फ़र्ज़ किया अगर कोई फार्मर है, कोई पोजेसर है, कोई मॉर्टगेजी है, जिसके पास पोजेशन ऑफ लैंड भी है, तो एक किस्म का मॉर्टगेजी जो है उसको आप लैंड ऑनर कहेंगे क्योंकि उसके पास पोजेशन भी है। तो याद रख लें, जिसके पास पोजेशन होगा लैंड का, वो उस लैंड को किसी तरह से भी यूज़ कर रहा हो तो वो लैंड ऑनर होगा अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। ऑनर ऑफ द लैंड वो होता है जिसके पास एक्चुअल ऑनरशिप के राइट्स होते हैं। ऑनरशिप के राइट्स कौन से होते हैं? ऑनरशिप के राइट्स 3 किस्म के होते हैं ना, कि जिसमें एक तो आपके पास आप पोजेशन एंजॉय कर सकते हैं, आप उसको ख़रीद सकते हैं, आप उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उसका अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन लैंड ऑनर जो होता है वो अपनी मर्जी से सारे काम नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑनर ऑफ द लैंड नहीं है। लैंड रेवेन्यू इज द रेवेन्यू असेस्ड और असेसेबल अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ एंड ऑल्सो इंक्लूड्स increased value of land due to irrigation, but it does not include cesses and taxes. सेस कहते हैं बेसिकली जो आपका हिस्सा बनता हो किसी चीज़ में। मिसाल के तौर पर अगर विलेज में कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो उसमें आप जो हिस्सा डालते हैं ना, उसको आप सेस कहते हैं। बहरहाल इसको हम आगे ज़रा गौर से भी देख लेंगे। टैक्सेस वो हैं जो आप इनकम टैक्स की सूरत में पढ़ते हो या किसी और टैक्स की सूरत में पढ़ते हो। इन टैक्सेस के अलावा जो सरप्लस आपका जनरेट होता है आपकी जो लैंड से, आप जो क्रॉप्स अपनी जनरेट करते हैं या आपने वहाँ पे इरिगेशन के लिए अगर वहाँ से आप पानी बेच रहे हैं, तो इस सूरत में भी जो कुछ आपका इकट्ठा होता है ना उसको आप कहते हैं लैंड रेवेन्यू, और वो असेस किया जाता है बाकायदा अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर एक्ट। तो ये था सारा इसमें टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। इफ़ यू स्टिल हैव सम अदर लाइक एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, इफ़ यू गाइज हैव, डू आस्क मी। यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर देयर. And I hope that this video was beneficial for you. Thank you so very much.